Okay, that's great. So Pallavi, good morning, Pallavi. Thank you for joining in today's interview. How are you doing today? I'm completely fine, sir. That's great. So the first feedback I like to give, I think on that day also I mentioned कि फोन को कभी नीचे मत रखना. तुम देख रहे हो कैसे आ रहा है, अजीब लग रहा है ना, नीचे से आ रहा है फोकस, तो वो हाँ. अच्छा नहीं लगता है. So it doesn't look professional कि you are sitting on the floor or you are sitting somewhere. So always try to keep it on the table. Do not hold the phone in your hand. सेल्फी की तरह बात नहीं करना है हमें, प्रोफेशनली बात करना है. अदरवाइज यू आर लुकिंग गुड, प्रेजेंटेबल हो, तो इट वाज लुकिंग फाइन. सो अभी जैसे हो, like that also it will also look good. Okay, so you have taken that advice, so I am happy with that. तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछा गया कि हाउ आर यू डूइंग, राइट? तो तुमने बताया आई एम डूइंग ग्रेट और आई एम डूइंग फाइन. बट कोई अगर हमें पूछता है कि आप कैसे हो, हम भी पूछते हैं ना कि आप कैसे हो, राइट? तो वो चीज इंपॉर्टेंट है. तो एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू. सो आपको भी कहना है कि आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग. ठीक है, तो उससे वो खुश हो जाएगा, वो बोला अच्छा इसने मेरे को भी पूछा, तो वो बोलेगा आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग. तब फिर उसके बाद प्रोसीड होता है चीजें. समझ पा रहे हो, छोटी छोटी चीज इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. A brief introduction about yourself. Yes, sir. Good morning, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. I am Pallavi Palekar. I think the video got distorted. Let me just restart. That's great. So Pallavi, before we proceed, can you give a brief introduction about yourself? Yes, sir. Good morning, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. I am Pallavi Palekar. I am from Junnar. I did my graduation BCA in Pune University. My strengths are I am self-motivated and hard worker. My short-term goal is get a job in a reputed company. My long-term goal is achieve my career. I have a basic knowledge of manual and automation testing. My hobbies are listening to music and searching a new technology on the internet. So that's all about me. Right. So your introduction was good. Okay. It was a strong introduction that you have given. But अगर तुम अपने आप को देखोगे, देखो कितना डरे हुए हो. समझ गए? There is no smile. वो चेहरे में जो एक स्माइल होना चाहिए ना, वो मिसिंग है. तो उससे इंटरव्यूअर क्या होगा, अरे ये इतना डरी क्यों है. समझ गए? The interview should not, it should be in a relaxed state of mind कि हाँ चलो ठीक है, ले लोगे तो ले लोगे, नहीं लोगे तो देखा जाएगा. It should be in that kind of a framework. जितना डर जाओगे उतना ज्यादा ना तुम्हारा सोच बंद हो जाएगा. अरे क्या बोलूं, इसके बाद क्या बोलूं, ऐसा हो जाएगा. So अपने दिमाग से वो जो सिलेक्शन का जो प्रेशर है, that you need to keep aside completely, and you need to be your own self. Okay. So that should be there. So your introduction was good. You mentioned that तुम कहाँ रहते हो. फिर the most important thing you mentioned that thank you for the opportunity to introduce myself. That's a very good point, because हजार रेज्यूमे से तुम्हारा रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट किया गया है. So that is a big achievement, right? बट कहाँ वीकनेस है यहाँ पे. जैसे तुमने बताया आई हैव गॉट बेसिक नॉलेज ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग. तो तुम बताओ, इतने सारे प्रोफाइल में से तुमको क्या सिर्फ बेसिक नॉलेज सुनने के लिए उसने सिलेक्ट किया है, राइट? So there is a problem. So you should never say that I have got basic knowledge. You should always say I have a good command over manual and automation testing. I have worked on few projects on my own. क्योंकि तुमने किसी कंपनी के अंडर काम नहीं किया. So you have to tell that you have built your own projects. I have used these technologies. I have used Java. I have used Selenium WebDrivers. I have written test cases. I have written test scenarios while working on this project. So you need to just include one thing in your introduction, that is your project. वो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने किस प्रोजेक्ट, सपोज तुमने काम भी नहीं किया किसी प्रोजेक्ट, मान लो कि कोई काम नहीं किया,
बट फिर भी वो प्रोजेक्ट तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट मैं बताऊंगी, इस प्रोजेक्ट को मैं अच्छे से देख के आऊंगी, इस प्रोजेक्ट में ये टेक्नोलॉजी मैंने यूज किया, ये टेस्ट केस लिखा, इसमें लॉगिंग फंक्शनलिटी में ये चेक किया, अंदर घुसने के बाद क्या क्या किया, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड इट। ओके, जो हम लोग प्रोजेक्ट किए थे क्लास में, दैट यू विल हैव टू इंक्लूड इन योर रेज्यूमे, and I guess you have not done that project, so वो गोविंद सर के साथ कनेक्ट करके I will request you to get the details of the project, okay, if you have missed it. So ये बहुत important है। बाकी आपका इंट्रोडक्शन अच्छा था। You have mentioned long term goal, short term goal, and in long term goal you have mentioned that I want to start a career. That is also your short term goal as well, right? You are going to get into the industry. So as I do not specify कि मेरा long term goal ये है, short term goal ये है, तो ये बोल सकते हो कि right now I will be highly interested to work under a company, get an exposure to different kinds of technologies and work in the domain that I want to be. So you want to be a tester, you want to work in that domain, and I'll be really grateful if I'm selected in today's interview. ऐसे बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, it's not a problem, but yes, try to make the conversation as light as possible. Introduction should be short, it should be crisp, it should highlight more about you, not about your family, college, ये वो। college तुमने just एक point बताया, that is absolutely fine. You should talk about more about more about the project, the technologies and the roles and responsibilities that you had in that project. बस छोटा रखने का, अच्छा बताया तुमने, बस प्रोजेक्ट का पॉइंट मेंशन कर दो, ठीक है? प्रोजेक्ट मैंने ये किया और इस पे मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 2 और 3 पॉइंट्स ऐसे करके बोल देना, खत्म हो जाएगा फिर वहां पे। देन उसके बाद इंटरव्यू और क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो प्रोजेक्ट का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, बिकॉज एज आई मेंशन इन द लास्ट डिस्कशन कि कोई अगर तुम्हें काम के लिए रख रहा है तो वो तुम्हारा काम देख के रखेगा, नॉट कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हो या कितना सुंदर दिखने में हो, दैट इज नॉट रेलेवेंट। ओके, सो वो अपने काम, ताकि काम रिलेटेड क्वेश्चन करे, इसीलिए प्रोजेक्ट को मेंशन करना। देयर आर 2 ways टू ड्राइव एन इंटरव्यू, 2 तरीका होता है। एक, तुम चाहते हो इंटरव्यू खुद से पूरा इंटरव्यू प्रोसेस को ड्राइव करे, एंड एक तुम चाहते हो कि मैं जैसे बताऊंगी इंटरव्यू ऑटोमेटिकली उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे, एंड यू शुड बी इन द सेकंड प्लेस। मतलब तुम जो बोलोगे इंटरव्यूअर वही क्वेश्चंस पूछना चाहिए, क्योंकि तुम प्रिपेयर्ड हो उस हिसाब से, राइट? सो प्रोजेक्ट बता दोगे तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा मैंने प्रोजेक्ट बताई, मतलब इसका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट रिलेटेड आएगा, एंड प्रोजेक्ट तो मैं जानती हूँ, तो जो क्वेश्चन पूछेगा मैं बोल दूंगी, जो नहीं आता है वो मैं बोल दूंगी कि राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल और आई एम नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जो भी है, ठीक है? तो वैसे करके प्रोग्रेस करना। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाँ सर। Okay, great. Great. Thank you for introducing. So, Pallavi, as you mentioned that you have basic knowledge of manual as well as automation testing. So, can you please let me know that have you worked on any project recently on any of the above technologies? So, as I was mentioning, that you will be selected based on the work that you have done. For that reason, the interviewer came to your work. Have you worked on any project? Because तुमने mention किया, I have got basic knowledge. तो कोई भी इंटरव्यूअर रहेगा वो तो सोचेगा भाई इसको सिलेक्ट किया, ये तो बोल रहा है बेसिक नॉलेज, ये तो मैं कॉलेज स्टूडेंट से भी निकाल लूं बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज कभी भी मत बताना, बिकॉज इफ यू टेल बेसिक नॉलेज यू आर कैटेगराइजिंग योरसेल्फ टू अ नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वो एक नेगेटिव इंप्रेशन आता है। तुमने सपोज 2 लोगों को काम के लिए रखा है, कोई आके बोल रहा है मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, और कोई अगर बोलता है मैं तो अच्छा खाना बना सकती हूँ, तो तुम डेफिनेटली उसको रखोगे ना जो अच्छा खाना बना सकते हैं, बिकॉज जॉब ही है खाना बनाने के लिए। अंडरस्टूड? सो कभी भी अपने आप को एक नेगेटिव वे में प्रेजेंट मत करना, एस्पेशली ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सर आपने कहा था कि रिसेंटली म्हणजे अभी प्रोजेक्ट किया है क्या, तो कैसे बताएं? हाँ, तो हैव यू वर्कड ऑन एनी प्रोजेक्ट? तो रिसेंटली भी ऑब्वियसली वो रिसेंटली इसलिए पूछेगा बिकॉज वो नहीं चाहता ना कोई 5 साल पहले कोई प्रोजेक्ट किया एंड वो नॉलेज लेके आ रहा है। तो तुमने 5 साल पहले भी किया होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने अभी वही किया है। समझ गए?
बिकॉज तुम अगर बोलोगे नो 4 years बैक आई डिड वन प्रोजेक्ट, वो तो बोले अरे बाबा 5 साल में कितना ज्यादा चीजें चेंज हो जाता है, क्यों लू मैं लू उसको। कोई अगर तुम्हें बोले मैं 5 साल पहले खाना बनाई थी वापस बनाऊंगी आज, तुम बोलोगे रहने दो बाबा मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो वही हो जाता है ना चीजें। तो वैसे ही है, इट्स सी इंडस्ट्री इज वेरी वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड ऑन योर ओन। जैसा एक नॉर्मल लाइफ में चलता है ना, वैसे एक इंडस्ट्री में भी चलता है। काम के लिए आते हो, काम रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, काम सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद जैसा जैसा काम आएगा वैसे वैसे करते रहोगे। इट्स नॉट रॉकेट्स दैट यू आर गोइंग टू मेक, राइट? डेफिनेटली यू कैन मेक फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, बट नॉट एट द मोमेंट। तो अभी के लिए उतना कॉम्प्लिकेट ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। Sir, I am doing college. I have done small project. My project name is, my last year project name is airline reservation system. I using the technologies are Oracle database. Um, I have done the project. See, the interview that is happening was on testing. The technologies that I have used is Oracle database and I am working. कोई मैच हो रहा है? तुमने खाना बनाने का एक अपॉर्चुनिटी है, कोई आकर बोल रहा है आई एम डूइंग वेल्डिंग, तो उससे खाना बनाने से क्या रिलेशन है? Oracle database is definitely good. You mention about that because SQL का पार्ट आएगा बाद में, but mention about the things, right? Manual testing किया है, automation testing किया है, test script लिखा है, test scenarios लिखा है, जो भी है, जो भी mention करना चाहते हो टेक्नोलॉजी में, मैं उतना डीपली नहीं घुसता हूँ, but these are some things that you will have to tell. तुमने completely different चीज बोल दिया at this point of time. अगर live interview होता, you are rejected because तुम छाप नहीं छोड़ पा रहे हो in the mind of the interviewer, and we need to create that impression in the mind of the interviewer, which is very important. Understood? Yes. समझ पा रहे हो राइट जो मैं बता रहा हूँ? हाँ सर. ओके, कभी कुछ भी क्वेश्चन रहेगा प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ। एंड वही तुम्हें समझना चाहिए हर एक चीज, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। टेंस में गड़बड़ी हो रहा है, पास्ट में किया है तो इट विल बी इन प्रेजेंट टेंस, इट विल बी इन पास्ट टेंस, यू आर सेइंग इन प्रेजेंट टेंस। समझ गए? तो वो सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना। Okay, so was it manual testing or automation testing, the project that you worked on? So what happened? तुमने खुद से सिर्फ डेटाबेस बोल के छोड़ दिया, तो इंटरव्यूअर कंफ्यूज हो गया, अरे भाई टेस्टिंग का इंटरव्यू ले रहा हो तो मैनुअल टेस्टिंग किया, ऑटोमेशन टेस्टिंग किया, क्या किया? ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर शुड नॉट आस्क यू, you should answer it upfrontly. Understood? Yes. Manual testing. Right. So what are the concepts of manual testing have you used in your project? तो इसका मतलब ये है कि क्या क्या मैनुअल टेस्टिंग की चीजें हैं तुमने यूज किया है। जैसे टेस्ट सिनेरियो हो सकता है, टेस्ट केसेस हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं मैनुअल टेस्टिंग रिलेटेड। तो क्या क्या चीजें तुमने यूज किया? व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग? दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। व्हाट डिड यू डू इन मैनुअल टेस्टिंग? How did you write the test cases? Give some examples of your project. So many things can be asked in different ways. The question can be represented. So you need to understand, अरे इसका मतलब क्या है? एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते तुम्हें सिर्फ दिमाग में उस टाइम पे फटाक से सुन के माइंड में खेलना है, अरे इसने ये पूछा तो इसका आंसर ये देती हूँ। समझ गए? And right now you see how was the reply. You are thinking, 2-4 सेकंड हो गया, अभी भी तुम सोच रहे हो। तो इससे क्या होता है पता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो द इंटरव्यूअर विल गेट टू नो इसने शायद काम नहीं किया। बिकॉज अगर कोई काम करता है तुम फटाक से बोल सकते हो। अगर तुम्हें पूछूं आज सुबह नाश्ता में तुमने क्या बनाया, क्या बोलोगे तुम? जो बनाया वही बताऊंगी। जो बनाया वही बताओगे, राइट? मतलब इमीडिएटली बताओगे, ऐसे सोचोगे क्या मैंने आज सुबह बनाया मतलब तुमने नहीं बनाया। तो यहाँ पे काम वही हो गया कि तुमने क्या काम किया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग ढूंढ रहे हो चारों तरफ बट मिल नहीं रहा है, सोच रहे हो, राइट? तो दैट इज द मोस्ट important part during the time of interview that you need to completely eliminate from yourself, कि हटाना है ये चीज, कि सामने वालों को ये फील होना नहीं देना है
कि मैंने सच्ची में काम किया है या मैं ऐसे कहानी बना के बोल रही हूँ। अगर मैं कहानी बना के बोल रही हूँ तो इतना कॉन्फिडेंट साउंड करूंगी कि सामने वाला सोचेगा अरे वाह क्या जवाब दिया है, बंदा मुझे मिल गया यहाँ पे। दैट शुड बी द लेवल। धीरे धीरे हो जाएगा। इट वाज जस्ट योर फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू आई गेस। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करोगे तो देखना तुम खुद अपने इंटरव्यू देख के एक दिन सोचोगे अरे मैं कैसे इंटरव्यू देती थी, अब देखो कितना अच्छी दे रही। सो दैट शुड बी द लेवल। ओके। Two entity relationship diagram. Two entity Mhm. relationship diagram. And in that concept, using project. Okay, right. So, what were your roles and responsibilities in your project? In that, my project, my role and responsibility. I have done some project project paperwork presentation. Um, I have done index page, login page, any types of two entity, three entity relationship diagram, and passenger name, ID, and at that exam time, I have I have what are the projects and what are using the technology. I have communicated with my project teacher. So lack of confidence was highly evident in your answer. So as I mentioned last time, make a notes of the project that you are going to tell. Okay. जो तुम्हारा कल there is one another interview that we are going to take. Make sure ये question तो मैं पूछूंगा ही, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह पे हर एक इंटरव्यू में जाओगे they will ask about the project, your roles in your current project. हमें भी पूछता है कभी मैं जॉब स्विच करूंगा तब वहां पे जब जाऊंगा तो वो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि तुम क्या करते हो अपने लाइफ, मतलब अपने डेली रूटीन क्या है तुम्हारा जब तुम ऑफिस जाते हो, व्हाट आर द डिफरेंट वर्क्स दैट यू डू, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज यू हैव, हाउ डू यू हैंडल द टीम। सो these kinds of questions are asked to me. So similarly तुम्हें भी यही सब क्वेश्चन पूछेगा, प्रोजेक्ट में काम किया है तो क्या काम किया है, क्या तुम्हारा रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज था। तो मेक अ नोट ऑफ इट एंड यू शुड साउंड डैम कॉन्फिडेंट। यहाँ पे एकदम नहीं चलेगा, बिकॉज ये तो तुम्हारा जाना हुआ क्वेश्चन है। इसमें अगर किया तो ना जाना क्वेश्चन में तो करोगे ही, राइट? Okay, that's great. So, were you working in a team or you were an individual contributor in your project? Not team, me. You're not audible, Pallavi. Sir, uh, not team. Me and my friend are working the project. So you and your friends. So definitely it's more than one people, right? In that. So it's a team project, right? So अगर इफ यू आर एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, आप अकेले रहोगे। आपके साथ अगर कोई काम कर रहा है दैट मीन्स वो टीम फॉर्म हो गया, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, ठीक है। आप अगर सिर्फ अकेले सब चीज कर रहे हो, आई एम एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर टू माई प्रोजेक्ट। इफ आई एम वर्किंग विद अ फ्रेंड, you will say that it was a team project, and always say that it was a team project. मेंशन मत करो एक ही दोस्त के साथ काम कर रही थी या जो भी दो के साथ, मेंशन करो इट्स अ टीम प्रोजेक्ट। कोई इंटरेस्टेड नहीं है कितने सारे लोग हैं। अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी पीपल वर देयर, देन बोल देना तीन। दो मत बोलना, बहुत ऑड लगता है, टीम बोल रहे हो एंड सिर्फ दो ही लोग हैं, तो तीन बोल देना, ठीक है, या तीन या पांच, पांच भी बोल दोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टूड? Yes. Not an individual project then. That's great. So when you were working in your project, is there any obstacle that had actually hit you, and how did you overcome that? Sir, please repeat the question. So since you were working in the project, there might be various difficulties that you had to face, right, initially. So Yes. can you tell one of the difficulty that you faced and how did you overcome that difficulty? So this is a very common question to a fresher कि जब हम लोग काम करते हैं, फ्रेशर्स लोग, फ्रेशर नहीं, हम लोग भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होता ही है।
तो गड़बड़ी हुआ एंड गड़बड़ी के साथ तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को एंड नहीं कर सकते, यू नीड टू फिक्स दोस गड़बड़ी, राइट? तो कैसे वो गड़बड़ी क्या था, कैसे फिक्स किया, तुमने कैसे उस चीज को हाईलाइट किया टीम में, या कैसे उस चीज के साथ डील किया ताकि वो गड़बड़ी फिक्स हो जाए. सो दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन नाउअडेज. एंड बट उस क्वेश्चन से पता क्या लग जाता है कि तुमने सच्ची में काम किया है कि नहीं. एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ये क्वेश्चन का आंसर्स हमारे पास अच्छे से हो. तो वो क्या करोगे, डेफिनेटली तुम जब प्रोजेक्ट के साथ गोविंद सर से डिस्कस करोगे एट दैट टाइम, आस्क कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है सर, एंड उसको कैसे कैसे ठीक करेंगे. बिकॉज तुमने शायद ओपन कार्ड प्रोजेक्ट में काम नहीं किया अभी तक. डिड यू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट? तो फायदा क्या हुआ, मतलब तुमने कोर्स कर लिया बट प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं किया, तो क्या मतलब है. खैर जो भी है, डिस्कस दिस थिंग्स विद गोविंद सर. ही विल टेल यू दैट व्हाट ऑल डिफिकल्टीज यू माइट बी फेसिंग एंड हाउ टू रिजॉल्व दोज डिफिकल्टीज. ओके, इफ नेसेसरी ये वीडियो को वापस देख के पॉइंट्स जो जो मैं मेंशन कर रहा हूँ एक डायरी में नोट डाउन कर लो एंड देन यू कैन चेक विद गोविंद सर. ओके. The at that time many difficulties I have faced. Um, that the project is not run and not correct properly. I will help me and my friend and project is correct. सो समझ नहीं पा रहे हो, राइट? मैं इंडियन हूं तो मैं समझ जाऊंगा. समटाइम्स यू माइट हैव टू स्पीक टू द क्लाइंट्स, यूके और यूएस के लोगों के साथ बात करोगे तो तुम प्रोजेक्ट को जो किया है उसमें बोल रहे हो प्रेजेंट टेंस एंड बोल रहे हो आई विल, वो फ्यूचर टेंस जो ऑलरेडी हो गया है, तो एक हॉचपॉच हो जाएगा. तो उसलिए वो प्रॉपरली आ नहीं रहा है. So this can be rectified as I mentioned. Newspaper, read newspaper every day. जोर जोर से पढ़ो, धीरे धीरे समझ पाओगे. सुनो अपने जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सुनो. अगर प्रोनाउंसिएशन लग रहा है नहीं यहाँ पे तो मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत है, गूगल में वो वर्ड टाइप करो एंड गूगल में सर्च करो हाउ टू प्रोनाउंस दैट. तो गूगल बता देगा कि कैसे प्रोनाउंस करना है. फिर उसको इमिटेट करके बोलने की कोशिश करो, हो जाएगा. इट विल टेक सम टाइम. Practice makes everything perfect. So you will also be better when you practice every day. But you need to sound confident with the points that you have. You are telling the project is not running properly, or you should have told that we were facing some difficulties in running the project at that time. So I contacted my mentor. My mentor mentioned that these are the areas. So ऐसे example देके बोलना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि these are the areas. You need to give technical points in that, and what points you need to give, Govind sir will tell you. Okay, so ask this question to Govind sir. He will tell you what all difficulties you might face. Correct run. Okay, so the project was not working. It's what problem that you were exactly facing in that project? The problems are coding mistake and error. Coding mistakes and error. So these kinds of answers becomes very evident to the interviewer that you have not worked on the project. तुम खुद भी देख के बोल पा रहे हो कि अरे कुछ भी बोल रही है, इसको सिलेक्ट नहीं करते. सो ये फीलिंग जब तुम खुद से खुद सोचोगे तो समझ पाओगे कि तुम बताओ, तुम अगर इंटरव्यूअर के जगह पे होते तुम सिलेक्ट करते अपने आप को? तो किस हिसाब से सामने वाला सिलेक्ट करके तुम्हें पैसा देगा उसके काम के लिए, राइट? सो आपको खुद को ऐसे बनाना है ताकि तुम खुद बोलो कि नहीं मैं अपने आप को सिलेक्ट करती. अगर तुमने ये बोल दिया ना, जिस दिन तुमने ये बोल दिया, इट मीन्स द वर्ल्ड विल ऑल्सो सिलेक्ट यू. एंड ट्रस्ट मी, ये चीज मेरे साथ भी होता है. मैंने जब खुद को बोल दिया कि इसमें तो मुझे कोई नहीं, मतलब मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लेता. अगर मैं कोई और मेरे को देखता तो मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लेता. तो उस हमेशा ऐसा हुआ है. जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया, जिस दिन मैं बोला कि नहीं यार मैं अपने आप को सिलेक्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली उस इंटरव्यू मेरा क्रैक नहीं हुआ. बट जिस दिन मैंने बोला कि अगर मैं इंटरव्यू के जगह पे होता ना मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लेता, और हर एक इंटरव्यू मेरा उस तरीके से सिलेक्शन हुआ है. तो इसमें तुम भी ये चीज आजमाना. तो क्या होता है, यू गिव एम्पल ऑफ टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज यू आर फाइंडिंग एरर्स इन योर सेल्फ. दूसरे लोग
तुम्हें तुम्हें अगर कोई बोले कि यहाँ पे गलत हो वहां पे गलत हो, डेफिनेटली यू टेक दैट फीडबैक, फिर बाद में भूल जाते हो। बट जिस दिन तुमने खुद को बोला ना, अरे पल्लवी क्या कर रही है तू, इसमें तू गलत बोल रही है, उसमें तू गलत बोल रही है, ये गलत था वो गलत था, तुम अपने आप को जब बोलते हो ना तो तुम उस पर और ज्यादा काम करते हो, बिकॉज खुद को रॉन्ग प्रूफ करवाना है, राइट? खुद को प्रूफ करना है कि नहीं यार मुझे सही करना है ये सब चीजें। तो वैसे करते रहना तो देखना लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओ। देयर शुड वोंट बी मच डिफिकल्टी। कभी कभी कोई और तीसरा बंदा आके बोल देता, अरे दीप तू ये क्या कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ अरे यार उसने ऐसे बोला, नहीं बोला, ऐसे ही बोला होगा, चल जाने देते, उसका क्या सुनता है, वो तो कुछ भी बोलता है। बट अगर मैं खुद को बोल पूछूं ना कि अरे दीप तूने ऐसा गलत गलत कर रहा है, इसको सही से पढ़ाई कर, 2 घंटा पर, 4 घंटा पर, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, खुद को बोलता हूँ। तो try to ensure that these things you also try to practice. It will definitely help you. And how did you fix it? It clearly states, The project here. इससे पता लग जाता है कुछ भी नहीं था, तुमने कुछ भी नहीं किया, फिक्स कैसे किया वही नहीं बोल पा रहे हो। सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पानी डाल दिया तेल के ऊपर, आग लग गया, खाना बना रहा था, तो उसको फिक्स कैसे किया, फायर एक्सटिंग्विशर मारा या कुछ भी किया, गैस बंद किया, ये किया, तो वो इमीडिएट आना चाहिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी वो चीज फेस किया हूँ। तो तुमने फेस नहीं किया इसलिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें कहानी बनाना पड़ रहा है एट दैट पॉइंट। तो कहानी नहीं बनाना है, ठीक है? अगर बनाना है तो पहले बना के आओ एंड फिर बताओ, समझ गए? सो नाउ अदरवाइज खुद करो उस प्रोजेक्ट को एंड फिर दिक्कतें फेस करो एंड देन टेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू ये दिक्कत हुआ। वी ऑलवेज एनकरेज आवर स्टूडेंट्स दैट प्रोजेक्ट में काम करो, इसीलिए तो प्रोजेक्ट रखा है ट्रेनिंग का पार्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज खुद से प्रोजेक्ट में काम नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? सिर्फ सिर्फ पढ़ाई करने से थोड़ी कुछ होता है, पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डाउन टू कोडर्स बना है, ताकि सबको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे पाए चीजों के साथ। क्लास स्किप करने से वो स्किप ही हो जाता है, फिर बाद में ये दिक्कत आती है, बहुत टाइम बाद आ गए फिर बोले सर मुझे करना है, जॉब चाहिए। जॉब किस कौन ऐसा बंदा है जो जॉब नहीं चाहता? मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे और थोड़ा बेटर जॉब मिल जाए। तो सबको जॉब चाहिए, बट मेहनत से सब डरते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, मेहनत करोगे तो जॉब मिलेगा। एंड मेहनत मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा पढ़ाई कर लिया है, जैसे आज तुमने बोला एंड प्रॉम्प्टली बताया सर 4 घंटे में पढ़ रही हूँ, मैं कितना खुश हुआ। मैंने क्या बोला, वाह, मतलब तुमने मेरा बात को फॉलो किया, इसलिए तुमने ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली बोला, ऐसा सोच के नहीं बोला सर अभी 4 घंटे। तो मैं सोचता कि तुम सही में 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हो। सपोज तुमने नहीं भी पढ़ रहे हो, बट तुमने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोला ना, मैं खुश हुआ, मैं मान लिया कि तुम पढ़ रहे हो। बिकॉज जब तुम खुद चीज करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तुम स्माइल करके बोलोगे, कॉन्फिडेंटली बात करोगे। तुम अभी अपने आप को देखो एंड तुम स्क्रीन पे अपने आप को देखो, कितना डरे हुए देखो, बिकॉज तुम्हें वो सब क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जिसपे तुमने कभी सोचा ही नहीं। क्या बोलूं, स्टोरी बताना है, सच्ची में काम तो नहीं किया फिर भी बता रही हो कि मैं काम किया है। तो वो सब चीजें ना हो। अगर काम नहीं भी किया है ना, तो भी उसको बनाओ ऐसे तरीके से कि सामने वाले को लगे कि अरे हाँ सही बात है, काम किया है। शायद अभी बोल नहीं पा रही है, इंग्लिश का कम्युनिकेशन कैरियर है, बट जानती तो है मैं अगर काम दूंगा ये तो कर तो लेगी, उतना कॉन्फिडेंस है। तो वो चीज आना चाहिए। अंडरस्टूड? Using the technologies, searching YouTube. Okay, searching it. So, did you have any kind of mentor in that project, or any guide who were actually helping you in your project? Or you Yes, handling everything? There was a guide? yes, my project teacher. Your project teacher was there. Okay. So you should always say, अगर ऐसा टाइप्स क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे किया है, फ्रेशर हो, इतने साल का गैप क्यों है, फ्रेशर हो, तो बोल सकते हो कि देयर वर सम फैमिली इमरजेंसीज दैट आई हैड, because of which I had to take a break. I was helping my father in his business, but right now everything is settled. Right now I want to focus in my career and I want to grow in that direction because this is my dream. For that I took a break. I know that there is a break in my career at the moment, but that happened due to some family emergencies. Now everything is sorted in my house and I want to
chase my dream and achieve it. That is the reason that I took a break and there is a gap in my career. And though there is a gap in my career, but I have utilized the time in the right way. I have undergone a certification in testing. I have done it from DownTownCoders, and I know how it works in the industry, and I would be able to perform if you give me an opportunity. तो ऐसे करके we are going to justify the 4 years of gap in between. Okay? तो ऐसे बोलना है कि फैमिली को हेल्प करने के लिए मैंने ब्रेक लिया था. And after that, you can also say after that I got married. So after marriage, there was some family pressure as well. But right now, everything is sorted, and I have got very good support from my family, and I want to pursue my career. Understood? तो ऐसे करके दो हिस्सों में थोड़ा थोड़ा बोल देंगे ना कि अपने पापा को बिजनेस में हेल्प किया, वो अभी सेटल हो गया. तो वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉब्लम अभी है नहीं, बिकॉज इंटरव्यू सोचेगा कि इसको हायर कर लिया तो वापस से बोल के ना छोड़ दे. तो बोलना है कि दैट इज सेटल. मैरिज हुआ, थोड़ा फैमिली प्रेशर था, राइट नाउ दैट इज आल्सो सेटल. तुम्हें सपोर्ट है, यू वांट टू राइट नाउ जॉइन द इंडस्ट्री एंड वर्क फॉर योर करियर. सो ऐसे बोलना है, इट्स माय ड्रीम टू गेट इनटू द इंडस्ट्री एंड वर्क, सो आई एम राइट नाउ फॉलोइंग माय ड्रीम. तो ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. वो सोचेगा कि नहीं लेते इसको, but provided you can justify with the technical answers. Technically आंसर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जस्टिफाई कर पाओगे. ठीक है, जो जो बोल रहे हो. So what feedback do you most often receive from your project teacher, or from feedback or from your friends when you are working in any environment? What type? So feedback मतलब सपोज जो मैंने तुम्हें बोल रहा हूँ, जैसे तुम्हारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो. टेक्निकली तुम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो उसको ठीक करो. तो ये फीडबैक तुम्हें बताना है. तो कम्युनिकेशन का फीडबैक दे दो. तो तुम ऐसे ही बोलना है ऐसे क्वेश्चन पे कि माय मेंटर ऑलवेज यूज्ड टू टेल दैट आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट और एक्सप्रेस माई सेल्फ प्रॉपरली because I do not have a very strong command over English. But right now I'm working on it. I have improved a lot, and hopefully it's a long process, and slowly I will improve even more. यही पॉइंट बोलना सिर्फ, क्योंकि इंटरव्यू समझ जाएगा कि तुम्हारा कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है. तो वही चीज बोल दो कि ताकि और फालतू क्वेश्चन ना पूछे. अगर यहाँ पे तुमने टेक्निकली वीक बता दिया अपने आप को, फिर तो वो तो तुमने खुद ही अपने आप को वीक बोल दिया, राइट? टेक्निकली तो वो टेक्निकल पॉइंट्स नहीं बोलने का, कम्युनिकेशन का पॉइंट बोल सकते हो कि दिस इज द फीडबैक दैट आई रिसीव, बट इट्स नॉट दैट ओनली फीडबैक, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ. तो ऐसे भी बोल देना कि फीडबैक लेके मैं काम भी कर रही हूँ उसके ऊपर, ताकि धीरे धीरे इंप्रूव हो जाओ. समझ गए? So feedback with a resolution you need to tell. What type of feedback do you receive the most? Feedback. My project is very properly run at that time, and my project teacher. Okay, not a problem, not a problem. So basically it's not a problem. ठीक है, तुम बोल नहीं पाए, फ्रेम नहीं कर पा रहे थे कि क्या बोलना है, अचानक से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं सुनी नहीं. बट अगर तुम हमारे चैनल पे जाके हर एक वीडियो को देखोगे ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, कोई ना कोई बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अलग अलग आंसर्स मिला है अलग अलग लोगों से, तो सीखने का मौका मिलता है. सो सब्सक्राइब टू द चैनल and try to watch all the videos, because these videos are very interesting. लंबा होता है, बहुत टेक्निकल चीजें होता है, बट उसको देखा करो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जो कि दूसरे जगह पे जाके मिलेगा नहीं. सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर नहीं किया है तो. Right. So how do you handle stress in your life? Please repeat the question, sir. How do you handle stress in your life? Right, we have a lot of tensions, right, when we are working in any environment. So a lot of stress builds up. So how do you handle those situations? I don't react immediately. So stress बोले तो कोई झगड़ा नहीं, that I don't react. Stress is जो प्रेशर होता है ना, सर दर्द होता है, ये होता है, अरे इतना काम सुबह से कर लिया, थक गया मैं, तो अभी और जाऊंगी नहीं किचन में, और नहीं बोल सकती मैं किसी के साथ, कभी कभी होता है, राइट? सो दैट इज स्ट्रेस. जैसे मेरा बहुत सर दर्द होता है जब स्ट्रेस हो जाता है. तो सो यू कैन से दैट आई प्रैक्टिस योगा
मैं योगा करती हूँ. Every morning I go for morning walk. I listen to good music that helps me to release all the stress and tensions that I have in my day-to-day life. So in this way I normally try to reduce my stress. तुमने क्या बोला? I do not react. React क्वेश्चन ही अलग था. क्वेश्चन ये नहीं था कि कोई अगर तुम्हें कुछ बोलता है तो तुम क्या करते हो. तो तुमने बोला है मैं रिएक्ट नहीं करती. ये स्ट्रेस सबको ही होता है. स्ट्रेस टेंशंस दिमाग में आते हैं तो सर दर्द होता है, ये होता है. तो वही है. I don't react immediately the stress level at that time. You can't react to a stress level, right? स्ट्रेस तो तुम्हारे माइंड में हो रहा है तो तुम अपने माइंड से कैसे रिएक्ट करोगे? पॉसिबल नहीं है वो चीज. तो वही है. ठीक है, कोई नहीं. Okay. Why do you think that you are suitable for this position that we are looking for at the moment? It's a very important question because during the time of interview you need to sell yourself. That is the key point. तुम अपने आप को कैसे बेचते हो. So 2 to 3 points you need to tell which should be very unique. You can say that I have, after doing the course, I am right now aware that how it works in the industry. So if given a task, I can do it very easily. So that is my key, that is my strength now because I know how it works. I am open to new things. So if suppose company requires a different technology and requires a person who needs to learn the technology and then implement it, I'll readily take that opportunity because I want to learn and I have that habit of learning things. So even if I have taken a break, I have already done manual and automation testing. And if given an opportunity, I can learn other technologies as well and work for myself. And third, I am very punctual and I try to complete my tasks within the deadline. During my college days, all the projects that I did, I completed within the time frame. So I am very punctual to my work and I try to complete the things within the deadline. So I can easily complete tasks if it is given to me within a particular time frame. And it will help my organization to grow and also clients will be happy because tasks will be delivered within time. तो मतलब तुमने ऐसा पॉइंट बताया. देखो सब लोग क्या बोलेंगे, 90% लोग बोलेगा आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम अ दिस, आई एम अ दैट. वे सब नहीं बोलने का, वो हटके बोलने का. so that it makes you completely unique and you will stand out of the queue. तो वही चीज है. तो तुमने क्या पॉइंट बताया? तुमने ये बोला कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया जहां पे सीख के काम करने का है तो तुम वो अपॉर्चुनिटी ले लोगे. डेडलाइन के अंदर तुम काम सबमिट कर देते हो. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो उससे क्या होगा? अरे वाह, ये तो टाइम के अंदर काम कर देगी. तो अच्छा पॉइंट है. एंड फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? क्या बताया मैंने फर्स्ट पॉइंट? ये देखो सुन ही नहीं रहे हो शायद. नहीं सर, सुन रही हूँ. हाँ, तो attention to details is very important. So you can say attention to the first point. मैंने ये बताया कि how it works in the industry I am aware of. So मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग अगर मिल गया I'll be good to go. ठीक है. तो and also you can also say that I am a very good listener and I pay attention. I give attention to the details. That is also a point, which is a different point. ये पॉइंट तुमने कोई वीडियो में देखोगे नहीं, कोई इसमें बताएगा नहीं. मैं अभी फ्लो में ही बता रहा हूँ. तो वही चीज है. सो दीज आर सम यूनिक पॉइंट्स दैट द इंटरव्यूअर वुड लाइक टू हियर. मुझे अगर कोई बोल देता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ बिकॉज मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ अपने ऑफिस में सिलेक्शन करने के लिए, एट दैट टाइम सम यूनिक पीपल कम and they tell some very very good points which I like. So definitely you can be that person as well. But हाँ, सुनो please क्या बोल रहे हो. And if you can tell 3 qualities about you that will actually make my job easier to hire you. I am hard worker and I have a problem solving skill. So problem solving skill is a good point that you mentioned. Hard worker is very monotonous. सब लोग यही बोलते हैं. Hard worker, quick learner, ये सब avoid करने का आपसे. Hard worker and you have got a problem solving skill. That's great. And what is your biggest weakness? My biggest weakness is I get bored easily. That's a very negative point that you mentioned. I get bored easily.
बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो काम तो वही करना है तुम्हें, रोज एक ही टाइप काम करना है, तो तुम बोर नहीं हो जाओगे क्या? इस पॉइंट सुन के तो पक्का वो रिजेक्ट ही कर देगा। तो ऐसे कोई भी, जैसे मैंने बताया, ऐसा कोई भी पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलने का। tell completely different. Tell that I have a habit of biting nails, which I think is a weakness, but I'm working on it, and definitely I'll improve over time. When I get stressed, I tend to bite my nails, and my friends and family tell me don't bite nails. Or you can say I tend to ride my scooter at a very high speed. So I'm working on that so that I can reduce my speed and ride safely. ऐसे करके points बोल सकते हो, which is completely out of the box, out of the topic of discussions. So this won't invite you more questions. तुमने ऐसा point बोल दिया, it will invite more questions. वो बोलेगा अरे तुम तो बोर हो जाते हो बहुत जल्दी, फिर तो तुम मेरा काम कैसे करोगे? तो वो rejection ही हो जाता है, means in a sense. So we will try to avoid this kind. You get bored very easily. Okay. So will it not affect your work, because sometimes you need to work in your project for long hours? Then same type of work you might have to do for many number of days. So won't you get bored, and it will affect your performance in the project? No, sir. Okay. So now you are contradicting. एक तो तुमने बोल दिया मैं बोर हो जाती हूँ, अभी पूछ लिया कि तुम बोर तो नहीं हो जाओगे, तुम बोल रहे हो नहीं सर। तो मतलब क्या है? मतलब अपने आप को ही तो तुम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, राइट? So just try to avoid and make sure that these kinds of questions, if asked, शायद मैं ये सब questions वापस पूछ भी सकता हूँ, नहीं भी पूछ सकता हूँ। कोई कोई इंटरव्यू में पूछेगा, कोई कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा। बस एंश्योर कि आंसर्स तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए कि क्या बोलना है, ठीक है? You need to react in that way. Pallavi, what is your greatest achievement till now? So it's a very good question कि तुम्हारा greatest achievement क्या है अभी तक का, एंड तुमने उसमें आंसर ही नहीं दे पाया। मुझे बहुत दुख लगा इस क्वेश्चन पे। लाइफ में कुछ तो अचीव किया है, राइट? 10th पास किया होगा अच्छे नंबर से, 12th पास किया, या स्पोर्ट्स में कुछ जीता होगा, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, कहीं पे कुछ तो कुछ अचीवमेंट किया होगा जिससे लगा अरे वाह कुछ तो मिला है। स्विमिंग सीखा होगा, या बाइक चलाना आता है तुम्हें? तो जिस दिन फर्स्ट टाइम बाइक लेके निकले थे, अच्छा लगा था ना? स्कूटी जब लेके निकले थे कि अरे यार मैं कर पाई। सो वही बोल देते कि बचपन से I always wanted to be a rider, but I never used to get support from my family that to ride bikes or scooters. But I had my friend who actually supported me, and I started practicing in his or her scooter. And the first day that I was able to ride bike on my own, it was the greatest achievement for me that day. That I could prove everyone wrong that yes, being a girl, I can also ride in a very good way. And I proved all my family members wrong. तो ऐसे बना चला के देखो, मैं इधर ऑन स्पॉट बैठ के स्टोरी बनाया। सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा, तुमने बाइक चलाना आता है क्या? तो उसको ही, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम साइकिल सीखा था, मुझे लगा था मैं तो पृथ्वी को जीत लिया। अरे वाह, मैं खुद से चला पा रहा हूँ। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। अगर कुछ भी और एकेडमिकली अचीवमेंट नहीं है, तो ऐसा अचीवमेंट बताओ जिससे तुम बहुत खुश हो। एंड दैट इज द थिंग दैट द इंटरव्यूअर वुड लाइक टू हियर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। द इंटरव्यूअर ये नहीं सोचता कि मुझे बेस्ट परफॉर्मर मिला है, मेरे को ये मिला है, वो मिला है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट जिससे तुम सच्ची में खुश हो, that you think that it's your achievement, you can say that. Try to be as honest as possible. If not, make up a story and try to sound as happy as possible. समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. And I was My disappointed. greatest achievement in I have properly studying in software manual testing. Yeah, I have properly studied in manual testing. मतलब कर दिया इधर पे ही क्या? इससे क्या होगा? तुम खुद के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर लियो, क्योंकि इसके बाद टेक्निकल राउंड, उसमें अगर जवाब नहीं दे पाए, खत्म। समझ गया? प्रॉपरली स्टडीड। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का जिससे तुम खुद बाद में जाके पछताओ, अरे मैं क्या बोल दिया, अभी तो मैं जस्टिस भी नहीं कर पाई।
and that happened. Technical round was not that great, so ये point तो greatest achievement में हुआ ही नहीं. And how can you give yourself an achievement कि मैंने अच्छे से पढ़ाई कर लिया? वो तो कोई और आके तेरे को तुम्हें बताएगा ना कि अरे बहुत अच्छा किया है तूने, तो कोई और बोलेगा इस चीज. अचीवमेंट तुम तब कर पाओगे जब वो चीज एक डिफाइंड हो जाएगा. अगर तुम्हारे हाथ में कुछ है कि प्राइज मिला है तुम्हें अच्छा पढ़ने के लिए, अगर प्राइज अगर अच्छा होता तो फिर कितना अच्छा होता, तो सबके पास ये एक एक ट्रॉफी हो जाता. तो वैसे कोई भी चीज मत बोलो, जैसे बताया वैसे बोलो तो अच्छा रहेगा. That is my greatest. You're studying properly. How can studying properly be an achievement? तो वही चीज मेरे दिमाग में आया, स्टडी करने से क्या अचीवमेंट होता है? स्टडी करके कुछ अगर बनाया तो एक अचीवमेंट हो सकता है. मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, वो मेरे लिए अचीवमेंट है. तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज तुमने इंस्टेंटली उस टाइम पे बताया तो वो मीनिंगफुल भी साउंड होना चाहिए, राइट? सो वी नीड टू अप्लाई कॉमन सेंस. द चॉइस ऑफ वर्ड्स, the choice of sentences and the scenarios that we are presenting are very important during interview. We need to study properly, right? Everyone needs to study. So when you study properly, थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ इधर. because of your hard work, you must have earned something. You must have. Yes. Tell me two qualities of a project manager that you have or you would love to develop in the next 5 years. Two qualities are project management, first communication skill, and second logical skill. Okay, communication skill and logic. Communication is a good point, but ऐसे ही सिर्फ first communication skill, second logical skill ऐसे नहीं बोलने का. The answer should be like water, it should flow. तो वैसे करके बोलना तुम कि अगर communication बोल रहे हो तो ऐसे करके बोल सकते हो that we need to ensure that we communicate well with my teammates. The work should be distributed evenly. It should not happen that someone is getting more work and other is not utilizing the time properly. So I'll make sure that I communicate what type of work are required to be done, how it is required to be delivered, and what will be the deadline. I'll communicate well with my team members so everyone is in the same page. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट ये बोल सकते हो कि every member when they are working in a team requires some kind of motivation, and that motivation if comes from a team manager, it's great. So if I will be a manager, I will try to appreciate my team members. I will appreciate for their good work, for the hard work that they are doing, so they will feel motivated every time they get appreciation from me, and they will try to give more to the project. तो मतलब अगर तुम्हें कोई बोल देता है, अगर तुम्हारे स्कूल में तुम्हें प्रिंसिपल आके बोलता कि पल्लवी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अगर अच्छे नहीं भी करते तो भी अगर बोलता बहुत अच्छे कर रहे हो तो तुम और ज्यादा करने की कोशिश करते, राइट? विच वी एक्चुअली मिस. मुझे कभी स्कूल में किसी ने नहीं बोला, कहीं पर भी किसी ने नहीं बोला, कुछ कुछ जगहों पे बोला है तो और मैंने देखा कि मैं और मेहनत करना चालू कर दिया. That motivation is very much required. So you can say these are the two things that I think that I will have in the next 5 years, or I have in myself, which I want to bring to the organization as well. ऐसे ऐसे करके बोल देना. Communication and technical skill. So how much rating would you like to give yourself for communication at this point of time? So rating मतलब अपने आप को 5 में से कितना देना चाहते हो, 10 में से कितना देना चाहते हो कम्युनिकेशन में. ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि तुम्हारा कम्युनिकेशन वाज वीक. तो मैं देखना चाहता था कि तुम कितना पॉइंट अपने आप को दे रहे हो. दैट मीन्स तुम मानते हो कि नहीं कि तुम सच्ची में कम्युनिकेशन तुम्हारा वीक है कि नहीं. तुमने अगर 7 बोल दिया 10 में से, तो मैं सोचूंगा कि तुम्हें फिर पता नहीं है असली कम्युनिकेशन क्या है. यू शुड गिव योरसेल्फ 5 out of 10. Like this you need to give. So you need to be honest in some cases. Please repeat the question, sir. How much? तो ये शायद तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे. Company's work time. No, I'm asking about the rating that you would like. So you were not able to understand that. If you are not able to understand that, tell sir I'm not able to understand your question. We can proceed with the next question if required. So but गलती बोल दोगे तो वो समझ ही जाएगा, अरे मैं ईस्ट बोल रहा हूँ तुम वेस्ट बोल रहे हो.
ऐसा like to give yourself, you rate yourself in communication that I can check today. Right, so we are done with the HR round. We'll start with with this our basically the round got ended. I believe that you are right now aware कि क्या क्या answers होना चाहिए, right? समझ पाए? हाँ सर. Was this session helpful? क्या ये session helpful रहा तुम्हारे लिए? हाँ सर, मैं आपने जो यूट्यूब पे डाले ना वो देखा है मैंने सब. Okay, तो relate कर पा रहे हो, right? चीजें help हो रहा है. तो आंसर्स को नोट डाउन करो, प्रिपेयर करो. सिर्फ देखने सुनने से होगा नहीं, उसको प्रिपेयर करना एंड प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज असली टेस्ट तभी होगा जब तुम खुद बोल रहे हो. सामने वाले को बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अरे उसके साथ हो रहा है, हमारा क्या टेंशन है. सब लोग वही सोचते हैं. सब लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू से एक दिन पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते, फिर मैं चला जाऊंगा, बोल दूंगा, मुझे तो सब आता है. बट एक्चुअली गलत हो जाता है वो चीज. तुम्हें बहुत बार 4, 5, 6 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है वो आंसर्स, तब जाके तुम थोड़ा बहुत बोल पाओगे. अगर इंग्लिश में तुम्हारा कमांड है, फिर मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, बट फिर भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंटरव्यू में नहीं बोल पाते अच्छे से. सो प्लीज मेक श्योर कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो. टुमारो इज अनदर राउंड. आई वांट टू सी योर बेस्ट परफॉर्मेंस, इफ नॉट बेस्ट बट एटलीस्ट बेटर देन दिस वन. सारे आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो. आई विल आस्क अमोल सर टू सेंड यू द वीडियो एज सून एज पॉसिबल. ओके, ठीक. okay then. Thank you Pallavi for joining in once again. थैंक यू. Thank you everyone. Take care. Bye.